हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग अ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स लाइक कपल ऑफ इंडिकेटर्स। इट इन्वॉल्व्स कपल ऑफ स्टोकेस्टिक्स और एक उसमें रहेगा अ स्लो स्टोकेस्टिक, एक उसमें रहेगा अ फास्टर वन, एंड आई विल बी यूजिंग EMA crossover also. So EMAs का I have used EMA crossover indicator, but आपको अगर आप चाहें तो अलग अलग इंडिविजुअली भी आप यूज कर सकते हैं EMAs लाइक 20 और 50। बाकी उसकी सेटिंग्स की पूरी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So in this strategy we'll be using couple of stochastics, और जो पहला stochastic है that is a slow one। और स्लो स्टोकेस्टिक की द सेटिंग्स आर द K percentage is 21, the D is 4 and the smoothing set at 10। ठीक है, तो 21, 4 and 10 दिस इज द स्लो स्टोकेस्टिक। और जो इसका ओवरबॉट एंड upper limit and the lower limit are set at 75 and 25। this is the setting for the slow stochastic। and अगर मैं fast stochastic की बात करूं तो the inputs are 5, 2 and 2। जो upper limit है that is set at 75 and the lower limit is set at 25। तो अभी बात कर लेते हैं EMAs की। So EMAs, why it is important? Because basically this particular strategy is a sort of a trend following strategy। तो you need some guidance के यार कि what is the exact trend। ठीक है, so I could have used like a single EMA, but यहां पे why I have used or why I have selected double EMA वो थोड़ा सा वीडियो में आगे चलेंगे और you will get a better idea about it। So now let's jump onto the rules के what are the rules के हमें कब एंट्री करनी है और किन कंडीशंस में we have to enter into a trade, and और क्या क्या चीजें देखनी है हमें while entering into a trade। So basically this particular strategy is going to be a trend following strategy। So you need you want to enter into a trade, और वहां पे you want to enter into a trend that is already established। and देखिए it is a intraday strategy, so we'll be using 5 minutes time frame। you'll be using two stochastics and an EMA 20 and 50। ठीक है, so these are going to be the settings। so अभी what we are going to see के so first of all we are going to wait for the slow stochastic to move above 75। देखिए 75 के ऊपर की तरफ if the slow stochastic is moving that means के the price has got the strength। a lot of people say like के यार upper areas में 75 plus चला गया, 80 plus चला गया, that means के it is in the overbought territory। but sometimes what happens like in a strong uptrend stochastics अपने हायर एंड पे, ठीक है, इट कैन स्पेंड सम टाइम जिसमें आपको एक डिसेंट एंट्रीज मिल सकती है। एंड इफ द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एनफ आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है दैट कुड बी इनसेन लाइक 1:5, 1:10, 1:12। ऐसे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं इफ द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एनफ और वो ट्रेंड कंटिन्यू करता ही जा रहा है। तो सो वी वांट टू गेट or we want to enter in the first pullback while the trend is taking a turn। so सबसे पहले बात करेंगे like we are just waiting for stochastic to move above 75। ठीक है, so the rules are the first rule is that we want stochastic to be above 75। the second rule is कि हमें एंट्रीज के बारे में we are not just jumping into any trade। अगर स्टोकेस्टिक 75 से ऊपर चला गया है डजंट मैटर, लेकिन हम अभी ट्रेड में एंटर नहीं कर रहे हैं। व्हेन वील एंटर, हम तब एंटर करेंगे व्हेन द फास्ट स्टोकेस्टिक मूव्स बिलो 75। और सो एक बार अगर स्टोकेस्टिक डाउन साइड पर 25 से नीचे की तरफ निकल गया है एंड द स्लो स्टोकेस्टिक इज अबव 80, above 75, that means the long term trend in terms of intraday, the long term trend is still bullish, and the slow stochastic ये वाला आपको एक रिट्रेसमेंट के बारे में बताएगा। एंड इफ यूल सी कि यहां पे विल टॉक अबाउट एग्जांपल्स आल्सो। सो यहां पे इफ यूल सी कि द फास्ट स्टोकेस्टिक वो आ चुका है 25 से नीचे की तरफ, एंड द स्लो स्टोकेस्टिक जो ओवरऑल एक ट्रेंड बता रहा है, तो वहां पे यूल सी कि इट इज स्टिल अबव 75 एरियाज।
तो अभी हमने ये देख लिया है कि स्टोकेस्टिक में हमें क्या क्या देखना है. वी वांट स्लो स्टोकेस्टिक टू बी अबव 75 and we want fast stochastic to be below 25. So अभी EMA कहां पर रोल प्ले कर रही है? So as I said के we want to enter into a trade on the first pullback. ठीक है? When the trend is changing, we want to enter into that trade in the first pullback itself. So अभी first pullback में हम when do we realize के trend change हो चुका है? We realize कि ट्रेंड चेंज हुआ है when there is a EMA crossover and EMAs क्या है 20 and 50. When there is a crossover of 20 and 50, then we realize कि trend is changing. So trend change हो गया. There were certain rules. The slow stochastic is above 75, checked, and the fast stochastic is below 25. It is already checked. And now the third point was कि EMA should give a crossover. The 20 EMA should move above 50 EMA. ठीक है? So we have seen कि यहां पर crossover हो चुका है. So we've got three check points like हमारे फेवर में 3 conditions मिल चुकी हैं. So what is the next condition? We want कि the price after the crossover, when the price is coming down to the EMA, when the price is coming down to the EMA, we want slow stochastic above 75, we want fast stochastic below 25. ये हमें दिखा दिया रिट्रेसमेंट एंड साथ में ही हमें EMA का एक सपोर्ट भी मिल चुका है. सो एंट्रीज कैसे करनी है इसमें? जो ट्रेड में एंट्री है, यू कैन यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसा कि यहां पे देखने को मिल रहा है. वी आर सीइंग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है. So that is the bullish pattern. So we can enter into a trade above this particular candle. आप यहां पर करके आ सकते हैं. You can use a trend line also. कि trend line हमारे पास there was a trend line. There was a trend line. कि यहां से from these areas there was a trend line, and it gave a breakout here, right? So we can look for different and we can look for different confluences while we are trying to enter into a trade. And as I said कि this is a trend following strategy. तो आपको इस ट्रेड में कब तक बने रहना है? जब तक आपको एक क्रॉसओवर लाइक के 20-50 से नीचे की तरफ जब तक नहीं निकल जाती, आपको इस ट्रेड में बने रहना है. और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर ट्रेड बन चुका है, then you just have to trail your stop loss at break even. As simple as that. बिल्कुल सिंपल. ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी. ट्रेंड में इफ यू विल गेट एंटर इनटू अ गुड प्लेस, आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं. यू कैन गेट लाइक ए 1:5, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स यू कैन गेट. सो अभी देखिए, व्हाट डज दैट मीन के इज दिस होली ग्रेल के यार ये स्ट्रेटजी हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी एंड वी आर जस्ट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल ओवरनाइट और वहीं पर सारा पैसा बन जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. देयर विल बी लॉसेस ऑल्सो. There is no strategy as such जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट्स निकाल के दे. ठीक है? So you'll get the losses also, but the main USP of this strategy is when you are winning, you are getting like 5 times. ठीक है? You'll getting 5 times, you'll get 10 times. But when you're losing, you are just losing 1x. You're losing just your stop loss amount. ठीक है? उतना ही आप लॉस कर रहे हैं, बट अगर ये आपके फेवर में चल के निकलती है तो यू विल गेट 5x 10x. तो मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको मिल सकते हैं. So now moving on to a bearish example. So first of all, let's repeat the rules. First rule was, और ये bullish example के we already discussed the rules. अभी bearish example के the rules are going to be totally opposite. First one is slow stochastic should be below 25. Fast stochastic should be above 75 and 20 EMA should be below 50 EMA. These are the 3 rules. Just these are the 3 rules. So अभी यहां पर चेक करते हैं कि what do we see? कि there is already a crossover. 20 EMA is below 50 EMA and the trend is already established. Trend is already established. The price came down. Stochastic, slow stochastic is below 25. That means कि there is some weakness in this particular index or in this particular stock. जो कुछ भी आप किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में या फॉरेक्स में क्रिप्टोस में कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हैं,
सो यू कैन सी दैट कि एक वीकनेस डेफिनेटली यहां पर दिखाई दे रही है. व्हाट वी आर वेटिंग फॉर कि द प्राइस शुड रीच द EMA, और वहां पर इफ वी सी bearish pattern, if we see a bearish pattern, we are going to enter into a trade. So this particular example is a good one because yahan par aapko what you will see a losing trade as well as a winning trade. So losing trade ka main pehle baat karenge. The price came down. yahan se what did we see ke price is the stochastic, the slow stochastic is below your 25. ठीक है. जो फर्स्ट रूल था दैट इज चेक. सेकेंड रूल इज के व्हेन द प्राइस इज मूविंग टू द EMA, वहां पे हमारा जो फास्ट स्टोकेस्टिक है दैट शुड बी अबव 75, एंड द सेकेंड रूल इज चेक्ड. यहां पर देखिए द थिंग इज के इफ आई विल जूम इन द चार्ट, यू विल सी lot of people can say this an evening star pattern because intraday में you won't be able to see the gaps. ठीक है. इंट्राडे में गैप्स इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते, तो यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर सेटअप और पर्टिकुलर फॉर्मेशन एज एन इवनिंग स्टार. सो यू एंटर इनटू दिस ट्रेड. यहां पर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, उसमें आपकी एंट्री बनती है. दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द SL पॉइंट, एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का वी आर जस्ट वेटिंग के 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाए, देन वील ट्रेल आवर स्टॉप लॉसेस एट ब्रेक इवन. तो What did happen के प्राइस इट केम डाउन, हमारी एंट्री हो गई है यहां पे. ठीक है. वी एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड और फिर दोबारा से प्राइस जस्ट वेंट अप, हमारा SL हिट हो गया. व्हाट वी आर वेटिंग फॉर ईदर नाउ वी आर नॉट एंटरिंग इनटू अ ट्रेड. व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, या तो प्राइस यहां से आप चेक करेंगे स्लो स्टोकेस्टिक फिर दोबारा से ऊपर की तरफ निकल के जा चुका है, दैट इज अबव 80, दैट इज अबव इनफैक्ट 75. तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, अभी हमारे पास स्लो स्टोकेस्टिक 75 से ऊपर आ चुका है. द फास्ट स्टोकेस्टिक, इसकी तो बात तब आएगी कि जब प्राइस ये दोबारा से 25 के नीचे की तरफ आएगा. ठीक है. सो स्लो स्टोकेस्टिक 75 से ऊपर है, परफेक्ट. बट हमारा एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग है दैट इज कि हमारा जो EMA क्रॉसओवर है 20 एंड 50 का EMA क्रॉसओवर के 20-50 से ऊपर की तरफ निकल के जानी चाहिए, दैट हैजंट हैपेंड येट. तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट सिटिंग आइडल. हम यहां पर बस प्राइस को देख रहे हैं कि लेट द प्राइस मूव, एक क्रॉसओवर हो जाए, फिर पुल बैक पे हम एंटर करेंगे सो दैट कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बने. एंड वी आर जस्ट वेटिंग के यार प्राइस दोबारा से ईदर इट शुड मूव अप, एक 20-50 EMA क्रॉसओवर दे दे, या फिर दोबारा से नीचे की तरफ आए और हमारा स्लो स्टोकेस्टिक को 25 से नीचे की तरफ लेकर जाए. तो अभी यहां पर हम देखते क्या है, प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ आया, द स्लो स्टोकेस्टिक इज बिलो 25. नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, अभी अपने को पता क्या चला कि यार द ट्रेंड इज स्टिल देयर, ट्रेंड अभी भी डाउनसाइड का ही है. व्हाट वी आर वेटिंग फॉर कि अभी अपने को क्या चाहिए कि यार एक बार फास्ट स्टोकेस्टिक हमारे 75 से ऊपर की तरफ निकल जाए और EMA को टच करते हुए हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए. और एग्जैक्टली वही हुआ जब प्राइस इन एरियाज पे पहुंचा. वी सॉ अ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न. स्लो स्टोकेस्टिक इज बिलो 25, द फास्ट स्टोकेस्टिक इज अबव 75. यहां पर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, अपनी एंट्री कहां बनेगी, एंट्री इज गोइंग टू बी बिलो दिस पैटर्न, बिलो दिस फॉर्मेशन. उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे when the price has reached 1:2 or when the risk reward is up to 1:2, what we are going to do, stop loss break even पे कर दिया. stop loss is not still hit. ठीक है. प्राइस नीचे की तरफ गया, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड जब हुआ है, हमने थोड़ा सा और ट्रेल किया, तो लगभग देखिए ट्रेल करते करते भी आपको 1:1.5 1:1 रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली इसमें मिल जाएगा. सो इस बेयरिश एग्जांपल में वी सॉ कि एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेम फॉर्मेशन में ही या सेम ट्रेंड में ही हमें दोबारा से री एंट्री मिली, एंड वी एंटर्ड इनटू दैट ट्रेड एंड वी एंडेड अप ऑन द प्रॉफिटेबल साइड. तो 1:3 पर निकलना है, 1:2 पर निकलना है, दैट इज टोटली सब्जेक्टिव. ठीक है. हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे इन दैट ट्रेड, दैट इज टोटली सब्जेक्टिव, राइट.
Okay, so the thing is कि अभी I just want you to backtest this strategy and then apply this into your live trading because every strategy has some drawdowns और drawdowns का आपको पता होना चाहिए so as to gain the confidence in that particular strategy. तो इस स्ट्रैटेजी में आई हैव शोन यू द एग्जांपल, द बुलिश एग्जांपल, उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट मिला हमें, बियरिश एग्जांपल जिसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, जिसमें हमें एक डिसेंट फेयर रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड भी मिला, 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड भी मिल गया था हमें. तो आई जस्ट वांट यू कि एक बार इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए so as to gain the confidence in this strategy. इसमें कुछ tweaks हैं, so you can just tweak that strategy के नहीं यार मुझे 2050 EMA that doesn't suit me, that doesn't suit my trading style. You can go for 8:13, you can go for 13:21 and अलग-अलग EMAs के crossovers बनते हैं, EMA combinations बनते हैं, so you can use that. Alright, so इस वीडियो में बस इतना ही, and if you haven't pressed the like button, so you can consider pressing it, and if you haven't subscribed to the channel, you can subscribe to the channel as well, and you can share that strategy with your friends and with the traders जो जिनको आप जानते हैं. Bye bye everyone, take care, and as I always say, always keep your risk managed. See you in another video. Bye.